अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, सजनों, बेलियो, दोस्तों ते दुश्मनों, वीरो, आखिरी दफ़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਿ ਇਲਮ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ, ਉਰਦੂ 'ਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਬਲੋਚੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ फ़ायदे ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਇਲਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਆਇੰਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ, ਤਹੀਆ ਕਰੇਗੀ, हल करेगी, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮਾਲੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੀ ਆ, ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਵਾ। ਤਾਰਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ 5 ਅਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਦੌਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ 5 ਟੋਟਲ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਫੇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਨੂੰ, ਦੌਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੌਰ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੌਰ। ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਖਿਲਾਫਾ ਮਿਨਹਾਜ ਨਬੂਆ, ਯਾਨੀ ਨਬੂਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈ। ਉਹ 30 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਦੀਸ ਫਰਮਾਈ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾ ਕੇ ਇਫਸਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੌਰ, ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫਤ ਰਾਸ਼ਿਦਾ ਦੇ 4 ਅਦਵਾਰ ਆਏ ਆ, ਬਲਕਿ 5ਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅੰਹੂ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਈਏ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸਲਮ ਦੀ ਪਰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਲਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਦਾ 12 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ, 11 ਸਾਲ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ, 12 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, 8 ਮਹੀਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਤਨੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੂਕੀਅਤ ਔਰ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ बाद नया दौर शुरू होता है, उसके बाद मलूकियत का दौर होगा, ज़ालिम हुक्मरानों का दौर होगा। हज़रत अमीन मुआविया की हुकूमत स्टार्ट होती है उत्थों, और अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की अल्टरनेटिव हुकूमत बाद सिस्टम स्टार्ट हुई थी। ये सारे अदवार ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਬਨੂ ਉਮਈਆ ਦੇ, ਇਹ ਮਲੂਕੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਮਲੂਕੀਅਤ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਿਸਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸੂਲ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਅਸੂਲ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਜਮਾ ਉਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਜਮਾ ਉਲਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਜਮਾ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਜਮਾ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਤਬਰ ਸਹਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਈਦ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਨਸੇ ਰਾਜ਼ੀ हुआ और ये मुझसे राज़ी हुए फरमाया। असाब बदर, असाब खंदक, असाब हुनैन, असाब फतह मक्का तो पहले वाले भी और बाद वाले भी, खास तौर पर पहले वाले वही साहबा ने हज़ूर अल्लाह की नज़र से कुरान सुलह हुदैबिया और फतह मक्का तो पहले ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅੰਹੂ ਦਾ, ਉਮਰ ਦਾ, ਉਸਮਾਨ ਦਾ, ਅਲੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਬਣਾਇਆ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਅਗਰ ਹਸਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਏਗਾ। ਨਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਇਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ। तो ये मलूकियत का दौर है। पहला दौर ये हज़रत ने फरमाया कि ज़ालिम हुक्मरानों का दौर, दूसरा दौर कोड़े बरसाने वाले हुक्मरानों का दौर, तीसरा दौर फासिक व फाजिर हुक्मरानों का
तीसरा हो गया ना, पहला हो गया खिलाफा मिन हाज नबूआ, दूसरा हो गया जालिम और जाबिर हुक्मरानों का दौर जिहड़ा अमीर मुआविया दा शुरू होंदा बनु उमैया दा, और उसी दे शायद बनु अब्बास भी शामिल है। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਕਾਟ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁਕਮਰਾनों का दौर। चौथा ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਤਰੀਨ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਫਾਸਿਕ ਫਾजिर और बद किरदार ਹੁਕਮਰਾनों का दौर। ਯਕੀਨਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾनों ਦੇ ਵੈਸੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਵਾਮ ਉਨਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹਦੀਸ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹਦੀਸ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਆਖਰੀ ਚੌਥਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ कि खिलाफा मिन हाजिल नबूआ, दोबारा लौटेगी दुनिया, जिधर इमाम आखिर ज़मान का दौर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर है। लेकिन मेरी नज़र से इमाम महदी का दौर मुख्तलिफ हदीस से साबित कर दिया कि उन्होंने कोई इख्तियार होएगा, ना उन्होंने कोई गल सुनेगा लिखा होया कि यानी खुडे लाइन साइड लाइन कर दिता जाएगा, मौजूद हैगी हदीस मौजूद हैगी, बल्कि और श्लोक च भी मौजूद है हिंदुओं के और सिखां के और किताबों के भी जिक्र हैगा। ਤੇ ਉਹ ਤਖਯਲਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਆਲਮ ਅਸਜਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ, ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਮਹਿਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਮਹਿਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 36 ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਨਹਾजुल नबूवत में हज़रत असलम ने शामिल किया, क्योंकि वो तखयलाती तौर पर ये जड़ा एक अच्छा दौर होएगा, लेकिन प्रैक्टिकल और तखयलाती दोनों दौर से स्पिरिचुअल एंड फिजिकल पावर के नाल 70,000 फरिश्तियां दे नाल जदों ईसा सलाम आने, फिर बाकायदा दौर का प्रैक्टिकल आगाज़ होएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल अल्लाह के नज़र से दोनों दौर मनहाजुल नबूवत दे विच है, खिलाफत राशिदा दे विच है। लेकिन साढ़े वर्गे अकल अन्ने जिहड़े हैगे या मादा परस्त जिहड़े लोग कि साढ़े सामने ईसा अलैहिस्सलाम दौर क्योंकि जिहड़ा कुछ कर सके, जिहड़ा मुआशरे में तब्दील कर सके, जिहड़ा मुनाफिकां नूं निशान ला सके, जिहड़ा काफिरां नूं निशान ला सके, जिहड़ा हक और बातिल नूं अलहदा कर सके, जिहड़ा कोई निज़ाम कायम कर सके, कोई बराबरी का इंसाफ कायम कर सके प्रैक्टिकली, तो वो ईसा अलैहिस्सलाम दा दौर, क्योंकि उन्होंने नाल 70,000 फरिश्ते होंगे। तो ये हो गई 5 अदवार की अहादीस। इसी दे विच 1440 साल इस वक्त तक हो चुके। डॉक्टर सरार अहमद बयान करता कि असीं 4.5 10-12 साल पहले फौत हो गए। देवबंदी के बहुत अच्छे सुन्नी आलिम से, बहुत अच्छा एनालिसिस से जमाने के हिसाब से उन्होंने कहा सीगा कि जिहड़ा तकरीबन असीं 4.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਤ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੌਣੇ 5ਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੌਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ 4000 ਤੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਇਸਲਾਮੀ ਸਕੈਟੋਲੋਜੀ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਾਦੀਸ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਜ਼ਈਫ ਹਦੀਸ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਸੂਫੀਆ ਦੇ ਕੌਲ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਕੌਲ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੌਲ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਕੈਟੋਲੋਜੀ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਇਲਮ ਖੁਜ਼ਮਾਂ 'ਚ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 95% ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਲਾਮਾਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੱਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਲਮ ਗੈਬ ਸੀਗਾ, ਉਹ 95% ਇਲਮ ਗੈਬ ਨਹੀਂ, 95% ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ 95% पूरा हो चुकिया वा, 5% रह गया। और अगर ईसा अलैहिस्सलाम और तौबा के दरवाजे से बंद करने का पॉइंट ले लीए, ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल का ले लीए, दज्जाल के खुरूज का ले लीए और इमाम महदी के ज़हूर का ले लीए, वड्डियां निशानियां, कबीरा निशानियां, जितों तौबा के दरवाजे बंद हो जाए, जिहड़े हो चुके तकरीबन, कुछ उलमा के नज़दीक बंद हो चुके, कुछ हले हैगे, बाकी ये थोड़ा इख्तलाफ हैगा। अगर नहीं होया तो बहुत करीब इंशाअल्लाह होने वाला। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तकरीबन 97%, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 98%, ਉਹਦੇ 2% ही रह गए ਜਿਹੜੇ दज्जाल के ज़हूर तक रह गए। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ 5 ਅਦਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਰਾਫੀਆ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਊਦੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਸਲਾਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਹ ਕੀਤਾ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਫਤਹ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਰੂਮੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਸਾਨੀ ਸੀਗੇ, ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਗਏ। देखो आ सारा इन्होंने तकरीबन हज़रत उमर फारूक के दौर तक, खिलाफत राजा उस्मान गनी के दौर तक एक्सटेंड इतने सारा हो गया सीगा, सारा इलाका, ठीक है। और हिंद का इलाका तो मकरान तक फतह हो गया सीगा हज़रत उमर फारूक के दौर से। और हज़रत उस्मान गनी के दौर से जॉर्जान, तबरेज़ तो लेके अपना ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀਨੀਆ, ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਤਾजिकिस्तान, ਇਹ ਨੌਰਥ ਆਫ ਅਫਗਾनिस्तान ਵੀ ਫਤह ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। उधर सेंट्रल एशिया के उस पासे जो अज़रबाईजान वो हो गया सीगा। एनातोलिया जो अज तुर्की के काफ़ी हिस्से फतह हो चुके थे, तो अफ्रीका के एंड तक चले गए थे जिथे मराकश तक है, थले अफ्रीका के भी काफ़ी एरिया च फतह कर लिया सीगा। ये सिर्फ 25-30 सालों के हो गया, 20-25 सालों के।
ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਦੌਰ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਧਾ ਦੌਰ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਅੱਧਾ ਦੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਬਨੂ ਉਮਈਆ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਸਿੱਕੇ ਬਨੂ ਅਬਾਸ ਔਰ ਬਨੂ ਉਮਈਆ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਖਿਲਾਫਤਾਂ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਆ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਔਰ ਅਸ਼ੋਕਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਰੀਖੀ ਸਾਰੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸਲਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰਤੁਗਰਲ ਦੀ, ਉਸਮਾਨ ਦੀ, ਉਸਮਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਅਰਬੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਅਰਬੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਕਸ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਾਰੀਖੀ। ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਆਹ ਕੋਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ 5 ਅਹਾਦੀਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਿੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਛ ਹਿੰਦ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਛ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਛ ਫਾਰਸ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਗ੍ਰੀਕ ਰੋਮਨ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ। ਚੌਂਕੇ ਇਲਮ ਆਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਆਪਣਾ ਨਿਆਮਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 60% ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੋਬਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੇਮ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਸੀ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਸੋਚਣੇ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸੋਚ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ, ਸਾਡੀ ਹੈਸੀਅਤ, ਸਾਡਾ ਸੋਚ, ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਉਲਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਬੋਰਿੰਗ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅਰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੁਮੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਜੁਮੇ ਜਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ। 5 ਦਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਰਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਇਸ ਮਕਸਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਔਰ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੋ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ एपिसोड करके ख़त्म कर देना मामला, हुज्जत पूरी कर देनी है, मकसद हैगा। 6 चीज़ों से पहले ईमान लिया, हज़रत फरमाया 6 चीज़ों से पहले ईमान ले, या ईमान अगर ला चुके हो मुसलमान हो मिसाल के तौर पर, फिर मजीद अल्लाह तौबा कर लो, या नेकी कर लो, या तस्बीहात कर लो, या सदके कर लो, खैरात कर लो, या नेकियां कर लो, जी नेकी के 1000 किस्म है, जी करो, सदका जारिया कर दो, सदका कर दो। तो ये जब ईमान वाले तो फिर तौबा कर लो, ईमान कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। 6 चीज़ों तो पहले, 6 चीज़ां किहड़ियां हैगियां जो तो किसी दी मौत तो पहले, किसी दी मर जाने तो पहले मर गया, उसके बाद उसका नामा माल बंद। हाँ, ये हदीस हैगी कि सदका जारिया मसलन कोई दरख्त लाया या कोई स्कूल बनाता जो बाद च कम आंदा रहे, उसकी मरने तो बाद वक्त किया वो अजर जानता रह गया, या नेक औलाद। लेकिन असल जो अमाल है वो तो मरदे नाल ही बंद हो जाते हैं। ये असी 36वीं जनरेशन, यह भी सुन लो, हज़ूर पाक तो लेके असी 36वीं जनरेशन, उस सहाबा तो लेके असी 36वीं जनरेशन है, तो साढ़े बच्चे भी हुण जो साढ़े जिन्होंने वक्त शादी उन्होंने बच्चे भी तकरीबन 12 साल तो उत्ते हो गए। 12 साल तक तौबा का दरवाज़ा बंद होंदा, बच्चों ते नामा अमाल नहीं लिखे जाता 10 तो 12 साल, उसके बाद नामा अमाल लिखा जाता, उस तो पहले माफ़ी है। तो वो भी जनरेशन 36वीं भी जनरेशन 37वीं जनरेशन भी जवान हो चुकी है। 36वीं 35वीं 37वीं 36वीं 35वीं और 37वीं जनरेशन के विच दजाल आना, बड़ी निशानियां आनियां, इसी दे विच उम्मीद है पूरियां हो चुकी, थोड़ा जिहा रह गया तौबा दे बाद इन्हां दे विच बंद होना वा। ते ये बहुत जरूरी है सानू आगाही ते सड़के ये सानू इस तरह कोई दसे, अस उस सामने फिर अपनी प्लानिंग करिए, या नहीं करना ना करिए, कम से कम मालूमात तो होनी चाहिए। ये मालूमाती चैनल भी हैगा, इन्हू बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं कि बहुत मजहबी गल नहीं हो रही इत्थे कि तुहाडे कोई तकवा मिल जाए, सवाब की नीयत तो मैं कर रहा हाँ, कोई चंगी गल है, जो किसी को पता लग जाएगी, ना भी पता लगे तो मैं जो दस दी है या किसी ने दस दी है, तो वो अल्लाह रिकॉर्ड तो कढ़ लेगा कि आ दसी सी, सानू साढ़े को नॉलेज आ गया, मालूमात आ गई, साड़ा दसना लाजिम इस वजह तो हो जाता
ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਪਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਮ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਫਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈਗੀ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਜਾਲ ਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਦਜਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਤੌਬਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਦੁਖਾਨ, ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਧੂੰਆਂ ਆਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਖਤ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋਨਾ ਇਹੀ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ ਮੋਮਨੀ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਕੁਫਾਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੈਸਟ ਫਰਾਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੇਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਦੀਦ ਤਰੀਬ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਦਿਖਾਇਆ। ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਖਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਆਸਮਾਨ 'ਚੋਂ ਆਏਗਾ, ਹਦੀਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੌਬਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਦੁਖਾਨ ਕਰੋਨਾ ਹੀ ਦੁਖਾਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੌਬਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੌਥਾ ਮੌਤ, ਦਜਾਲ, ਦੁਖਾਨ। ਚੌਥਾ ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੂਰਜ ਦਾ, ਸੂਰਜ ਮਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੌਬਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੁਲਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇਮਰਾਨ ਨਜ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਮ ਦੇ ਇਲਮ ਆਖੁਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮਸੂਦ ਔਰ ਮਕਬੂਲ ਜਾਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਇਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਛਾ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਜਾਲ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈਗਾ, ਇਸਤਾਰਤਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਉਲਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਅਲਾਮਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਰੁਕੀ, ਸਲੋ ਹੋਈ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਝ ਉਲਮਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਸਤਾਨਨ ਜਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਕਿ ਅਰਥ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੌਬਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀ, ਜब ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਦੁਖਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ अच्छा और हैगा दावतुल अर्ज़, जैसे दुकान आएगा, जैसे ही सूरज मगरब तो निकलेगा उधर फ़ौरन बाद हदीस हैगी है सही बुखारी दी कि एक जानवर निकलेगा और कुरान चिन्ह लिखा है कि जानवर निकलेगा, उन लोगों नाल गल करेगा लोगों नू, और हदीस दे विच लिखा हो कि निशान ला के कफार, मोमिन और मुनाफिकीन 3 हिस्से च दुनिया च कज़ाब दे विच, मुनाफिकीन नू कज़ाब, कफार नू कफार और मोमिन नू नूरदार मोमिन लगा के नूरदार रंग दे के, और वो सफ़ा पहाड़ी दे विचों निकलेगा और खाना काबा दे कोल जाके फिर गल करेगा। वल्लाह आलम ये हुण इहदी ਸਿੰਬੋਲਿਕ की सिग्निफिकेंस हैगी आ। इस तरह ईसाई यहूदियों ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਆਫ ਦ ਬੀਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦਜਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਜਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਛठी ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਹਸ਼ਰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏ और क़यामत का दिन कायम हो जाए। ਹੁਣ क़यामत ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਇਮ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਂसेस ਹੈਗੇ या 90% ਚਾਂसेस नहीं भी हैगे या 80% चांसेस नहीं भी हैगे, क्योंकि एक हदीस हैगी अचानक क़यामत कायम हो जाएगी। एक हदीस हैगी अचानक कायम हो जाएगी, यानी दजाल नू, जूज मजूज नू और सूरज दे मगरब निकले नू और दावतुल अर्ज़ दे होए, सारिਆਂ ਦੇ ਹੋਏ बगैर अचानक भी क़यामत कायम हो सकती। ये भी हदीस हैगी और ये बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ भी हैगा, यानी अचानक तौबा ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ भी बंद हो जाएगा। और ये उन लोगों वास्ते भी है, साढ़े वास्ते नहीं। 37ਵੀਂ जनरेशन या 38ਵੀਂ जनरेशन ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ, ਇਹ 37 ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ने अनकरीब आ जाना, तो ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹਦੀਸ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ मुस्तदरिक हाकिम 'ਚ हैगी। दूसरी नूह बिन हमाद है कि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले इमाम मेहदी उस वक्त तक नहीं निकलेगा जब तक सूरज मशरिक से मगरब से ना निकला, यानी तौबा का दरवाज़ा ना बंद हो जाए। ये नूह बिन हमादी है जो किसी आलम ने नहीं दसी, दुनिया के किसी आलम ने नहीं दसी। मैं तुहानू ਇਹਦਾ सबूत ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ पेश कर रहा, मैं अगले ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ सबूत पेश कर रहा, दोबारा मैं ਉਹਨੂੰ कोट कर ਦਿਆਂਗਾ। नूह बिन हमाद ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਇਮਾਮ ਬੁਖਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਸਿਆਸਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ है कि इमाम मेहदी नहीं निकलेगा जब तक सूरज मगरब से ना निकले, यानी कि तौबा का दरवाज़ा ना बंद हो जाए। और उन्होंने ही लिखा है 2/3 दुनिया जब तक ना मर जाए। सब तो खौफनाक गल जी इस वीडियो की हैगी है या साढ़े दसने का मकसद हैगा वा, या जिन्हें पता होनी चाहिए 2/3 दुनिया मरनी, यानी कि 9 अरब के तकरीबन 5 अरब बंदे मरने हैं। तो इमाम का ज़रूर होना, दजाल का खरूज होना, ईसा का नज़ूल होना, ईसा अलैहिस्सलाम का आना एक खुशखबरी है, इमाम दा ने खुशखबरी है, लेकिन एक खौफनाक खबर भी हैगी है, क्योंकि एक अलामात मुकम्मल होने तो बाद ही उन्होंने आना। जिद्दां कोरोना, और यह भी हो सकता है कुछ हदीस अल्लाह ताला दे रसूल या अल्लाह ताला खुद ही बदल देवे, ऐसा होया वा। जैसे एक कौम दे विच इदां होया, अजाब आया यूनुस अलैहिस्सलाम दी कौम च, तो लोगों ने डर गए, लोगों ने तौबा करनी शुरू कर दी। अजाब आया होया और कौम नूं छड़ के चले गए। उस जमाने च हर इलाके दे अलग नबी पैगंबर हुंदे सी, और इलाके च गए तो पिछे उन्हां दा अजाब रोक दिता गया, तो उन्होंने तौबा कर ली, तो ऐसा होया।
ऐसा दूसरी दफ़ा होया, दूसरा साड़ी कौम च हज़रत असलम ने करवाया अपनी इस्तबदादी कुवत दे नाल, अपनी दिते हुए फैज़ दे नाल, अल्लाह ताला दी बेइंतहा अन्ने लाफानी जिहड़ी कुवतां दित्तियां वा उन्हां दे इस्तेमाल करदे हुए एक्स्ट्रा जुडिशल पावर जिहनूं कहंदे आ लॉ दी लैंग्वेज, एक्स्ट्रा जुडिशल पावर दित्तियां सी, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੋਹੇ महफूज ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 10-15% ਐਸੀ ਹਾਦਿਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਸਲਮ ਨੇ ਖਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਰੀਕਤ ਦੀ, ਅਹਿਲੇ ਤਰੀਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਮਾਰਫਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਲਮ ਲਦੂਨੀਅਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਰੀਅਤ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100% ਇਖਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਫਤ ਸਮਝਦੇ ਆ ਔਰ ਮਾਰਫਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਮਸਲਕ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ रूहानी लोगों का भी दे रहे। अच्छा, ये बाद हूँ कड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ 6 चीज़ा हो गई। हूँ हो गई 10 कबीरा अलामात। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट जी दसनी है, 10 कबीरा अलामात असी दसनी है। सगीरा, मुतवसता और कबीरा 3 अलामात हज़रत ने डिस्ट्रीब्यूट किया। हज़रत ने तो 2 च किया सी, बाद उलमा ने मोहम्मद बिन अब्दुल रसूल बजंजी ਜਿਹੜੇ ਤਾਬੀਨ ਤਬੇ ਤਾਬੀਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਮੁਸਤਨਦ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਮਾਮ बुखारी और सारे तो बहुत बड़ी लिखी है। ये तो नुएम बिन अम्मार, ये 2 बड़ी किताबें है। तो इमाम बुखारी च तकरीबन 60-70 सफ़े है। इमाम बुखारी के 60-70 सफ़े, इल्म आखिर ज़मान ये देख लो किन्नी है, 1400 सफ़े है। दसो जिन्हें 60-70 भी नहीं होने, मैं हुणी तुहानूं दिखा देंदा, मैं आप भी नहीं गिने, थोड़े जे होने हैं। ये जिहड़े इमाम बुखारी के अलावा नहीं ना गल करते, वो देखो बच्चों ने हुण इहनूं अगे पीछे करता तकरीबन 60-70 ही सफ़े है। सर वो स्टेपलर खराब करता वा। तकरीबन एक बंदे ने 60-70 सफ़े दसे और एक ने जड़े ये सही बुखारी हैगी आ। सही बुखारी ने 60-70 सफ़े दसे टोटल इल्म आखिर ज़मान चो जरूरी चीज़ां हर टॉपिक में कवर किया वा। इन्होंने किया इस चीज़ जिन्होंने किया इस चीज़ से उन्होंने ज़ाहिर बहुत तफसील नाल हैगी, ਉਹਦਾ मैं हवाला दे रहा मोहम्मद बिन अब्दुल रसूल बरनजी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक कि जड़ियाँ मैं गल ही भुल गया कि कर रहा सीगा। बहर हुण आगे 10 कबीरा अलामात कि 2/3 दुनिया मरेगी, फिर इमाम का ज़हूर होगा, दज्जाल का खुरूज होगा, ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूर होगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि सूरज मगरब तो निकलन तो बाद तौबा दरवाज़ा बंद होने तो बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। ये भी नुएम बिन अम्मार ने लिखी है, मोहम्मद बरजंजी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखी है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ जी उलमा साढ़े छुपाते हैं, 2-3 चीज़ां जी मैं पिछले उर्दू और अंग्रेजी च मैं दसना भुल गया कि 313 मोमिनीन हज़रत ने फरमाया देवबंदियों की किताब च भी है, बरेलियों की भी हैगा, ते सुन्नी बरेलवी, सुन्नी देवबंदी, सुन्नी वहाबी और सुन्नी और शिया की किताब है कि 313 मोमिन मेरे साथ आखिरी ज़माने में होंगे, जितना मेरे साथ असहाबे बदर थे, जिसका मुझसे पहले असहाबे तालूत थे। तालूत अलैहिस्सलाम एक बादशाह सीगा, ਉਹ नेक बादशाह सीगा, कुरान च भी जिक्र है, बाइबल च भी जिक्र है, सोल दे नां तो अंग्रेजी च जिक्र आया बाइबल दे विच। ਉਹ दाऊद अलैहिस्सलाम ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, दाऊद अलैहिस्सलाम ने देहातों उन्होंने बैत की सी और उन्होंने अल्लाह ने फतह की सी। हक ते नबी तो नहीं सी, लेकिन एक अच्छे नेक आदिल बादशाह सीगे। 313 उन्होंने नाल सीगे, 300 नाल मेरे नाल, 300 यानी माजी भी दस रहे, हाल भी दस रहे, मुस्तकबिल भी दस रहे मोमिन की तादाद अज के दौर च सिर्फ 313 दौरे फितन च हैगी है, जिहदे विच उन्होंने फिर इमाम जाफर ने लिस्टां बनाईयां अहले तशी किताबां च हैगी। इमाम जाफर अहले तशियां दे जाती नहीं, सब दे इमाम हैगे, जिहड़े सूफी बरेलवी भी उन्होंने मनदे और अहले तशी भी मनदे, देवबंदी वाबी उन्होंने लिस्ट च नहीं पाते अपने। हालांकि इमाम अबू हनीफा के उस्ताद रहे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाया मेरा इल्म नकारा हो जाता या बर्बाद हो जाता या मैं हलाक हो जाता इल्मी तौर पे अगर मैं इमाम जाफर से ना पढ़ जाता, सीखता और ना समझता। जिन्होंने जैसा सरदारां दे विचों एक सरदार भी है, यह भी देवबंदी और वाबी हदीसां च मौजूद हैगा, वो भी मैं कोट कर देंगा या कर चुकिया मैं। तो उन्होंने 313 ਦੇ ਵਿੱਚ पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश उस जमाने 'ਚ पाकिस्तान ਜਿਹੜਾ ना सिंध ਸੀਗਾ, सिंध ਦਾ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਕਿस्तान ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੰਧ ਸੀਗਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਕਰਾਨ ਤੱਕ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿस्तान ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਿੰਧ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮੂਮਿਨ ਹੈਗਾ, 23 ਕਰੋੜ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਮੂਮਿਨ। ਇੰਡੀਆ ਬੰਗਲਾदेश 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੂਮਿਨ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। बाकी कई उलमा मैं गल दसी हो नहीं मन तरह, क्योंकि खुद में उलमा वो बड़े बड़े मुफ्ती जड़े खुद मोमिन कहते, लेकिन अल्लाह की नज़र च, अल्लाह के रसूल की नज़र च, इमाम जाफर की नज़र च मोमिन इतने कोई भी नहीं है। भावें देवबंदी हो, वाबी, बरेली, सूफी। एक किताब च लिखा, तो मैं कहा तुहानूं बुरा लगता तुसी वो किताब नूं भावें तुसी जाके कोर्ट दे विच कैंसल कर सकते हो, या उन्होंने यह किताब हैगी इहनूं कैंसल तुसी कर दो अगर जे तुहानूं इहदे ते एतराज़ हैगा। अहले तशियां दी किताब हैगी, लेकिन देवबंदी, बरेलवी और सूफी और अहले हदीस वाबी सब दी 313 की हदीस मौजूद हैगी कि 313 तो ज़्यादा मोमिन नहीं है।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਉਲਮਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤਹਿਕੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ क़यामत नहीं आएगी जब तक सारे दुनिया मुसलमान ना हो जाए, ईमान ना ले आए, ईमान मुसलमान ना हो जाए। एक बड़े फखर नाल कहते खुश होकर कहते, लेकिन हदीस मुकम्मल हैगी अलग-अलग 3 हदीस आएंगी, मैं इकट्ठी करके पॉइंट बना रहा। एक के सारी दुनिया मुसलमान होगी, फिर क़यामत आएगी, सारी दुनिया ईसाई होएगी, फिर क़यामत आएगी, सारी दुनिया यहूदी होएगी, फिर क़यामत आएगी, और एक वक्त ऐसा आएगा यहूदी, ईसाई और मुसलमान सारे दज्जाली हो जाएंगे, राधे हो जाएंगे, शैतानी हो जाएंगे, मलून हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे। वो यह दौर हैगा वा, तकरीबन यह दौर हैगा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਦੇ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦਜਾਲ ਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਔਕਾਤ ਮਾਪਿਓ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ। कुरान ਦਾ वादा ਸੀ कि मैं इनके मुंह से इकरार करवाऊंगा। ये भी एक प्रोफेसी पूरी हुई है, या पेशन गोई पूरी है कि अपने मुंह से इकरार करेंगे कि हम काफिर हैं, कि हम काफिर हैं। इनके मुंह से करवाऊंगा ताकि जान के जिए, जान के मरें कि हम काफिर और मुनाफिक होकर मरे। तो ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਦੇ, ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ईसाई यहूदी, वो यहूदी है ना ईसाई, ना सिख है ना हिंदू, वो फिर काफिर है, पक्के काफिर है। ईसाई यहूदियां या उन्होंने एक माफ़ी हैगी है, हज़रत सल्लम उन्होंने शफात कर सकते, लेकिन जो अल ऐलान दजाली के लादा वा या कहता वा या राधा कहता, वो वास्ते माफ़ी नहीं हैगी है। मुश्किल होनी जरूर, बाकी अल्लाह बेहतर जानते। ये किताबों के हिसाब से मैं दस रहा होना कि अल्लाह जिंदा मर्जी करे जिदा उन्होंने काम। अच्छा, बाकी किहड़े पॉइंट रह गए? 10 कबीरा अलामात। 10 कबीरा अलामात ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਗੀਰਾ ਛੋਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੁਤਵਸਤਾ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ 2 ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਹਿਰ ਕਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣਾ ਬਰੇਲਵੀ ਆਲਿਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 3 ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਗੀਰਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਫਸੀਲਾਤ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। बहुत लंबी हैगियाँ, बहुत 4000 पॉइंट में जाते, मोटी मोटी करना, एक लिस्ट बनाई है, करी जाएंगे, जल्दी जल्दी दसी जाएंगे, ताकि तारे को टाइम वेस्ट ना हो, तो उसको सुनने वाले को बोरियत ना हो, क्योंकि हिदायत तो है नहीं, सारे घट वध हैगी है। अल्लाह ताला ने वो वक्त गुजार चुके हुआ जिहदे आसानी होए, लेकिन मुश्किल हो गए। दज्जाल का फितना बहुत ज़्यादा इस वक्त फैला हुआ। शैतान उस्ताद की बड़ी मेहनत की है, जो उन्होंने वादा किया से अल्लाह, मैं तेरे बंदे मैं जहन्नम च लेके जाऊँगा, और अल्लाह की कसम उन्हें अपनी गल पूरी की है। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਨੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਚ ਪਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ, ਰਹਿਮ ਥੋੜਾ ਹਾਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਰਹਿਮ ਮੇਰੀ इंसाफ पे, इंसाफ तो नहीं, मेरे जबर पे, मेरे कहर पे भारी है। तो बहरहाल आखिरी है 10 कबीरा निशानियां। 10 कबीरा निशानियां वो हैगियां जिन्हां दे विच 5 ऐसियां ਜਿਹੜੇ तौबा ਦਾ दरवाज़ा बंद कर ਦਿੰਦੀ। ਕਿਹੜੀ? दज्जाल का ज़ाहिरी खरूज, और दज्जाल का ज़ाहिरी खरूज नंबर 1, नंबर 2 दुखान, आसमान से धुआं, नंबर 3 सूरज का मगरब से निकलना, दाबतुल अर्ज़, और मैदान हशर कायम हो जाने। 5 चीज़ें जी हैगियां तौबा का दरवाज़ा बंद कर दियां। छठी मौत, 10 कबीरा निशानी नहीं होती, किसी टाइम भी आ सकती। 36 जनरेशन वास्ते वो हदीस मौजूद सी। ਉਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੂਜ ਮਜੂਜ ਆ, ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ है 6-7, और 3 जगह खरूज होएगा, 3 जगह खसूफ होएगा। अरबी च लिखा खसूफ, ज़मीन का फटना, और ज़मीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਆਬਾਦੀ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਰਨਾ, ਵੱਲ ਆਲਮ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਕ ਹੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਘਰ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਜਨੋ ਕਿਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਦਾਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਤਫਸੀਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਸ਼ਰਿਕ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਈਸਟ 'ਚ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੈਸਟ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਮਸ਼ਰਿਕ ਮਗਰਿਬ 'ਚ, और एक जदीदुल अरब ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੈਦਾ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ। ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 10,000 ਕੇ 40 ਕੇ 50-60,000 ਦੀ ਫੌਜ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਖਿਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਤਲਾ ਦੇਗਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਤਲਾ ਦੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਵੜ ਗਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਜੂਤਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਜੂਤੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ अजाब। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुहम्मद सल्लम के बाद यही एक दफ़ा आएंगे दुनिया से। वो भी एक अलामत पूरी होनी है। तो एक यह भी अलामत पूरी है कि वो 3 खसूफ के एक पक्की खसूफ जी बैदा के मुकाम पर होएगी। ये 10 कबीरा हो गई, ये पता होना चाहिए 10 कबीरा अलामत। जो जूज मजूज भी पूरा हो गया, ठीक है ना, जूज मजूज तो कन्फर्म पूरा हो गया। जूज मजूज पूरा होने की कुछ साल पहले शेख इमरान हुसैन कहते थे, सब तो बड़े जो इल्म आखिर ज़मा के माहिर, वो कहते थे कि अपना
ਜੂਜ ਮਜੂਜ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੂਜ ਮਜੂਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਕਰਨੈਨ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਜ਼ਰੀਆ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਹੈਗਾ, ਜਾਰਜੀਆ, ਆਰਮੀਨੀਆ, ਜਾਰਜੀਆ ਔਰ ਜਾਰਜੀਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਹੰਗਰੀ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾਰਿਆਲ ਘਾਟੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਏਰੀਆ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਸ ਯਹੂਦੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਔਰ ਇਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਕੂਬ अलैहिस्सलाम ਦੀ, लेकिन ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀਅਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਵਾਹਿਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, और इस वक्त इसराइल की सबसे ज़्यादा इन्हों की तादाद है। ये नेतन्याहू हैगा इस वक्त जो वज़ीर आज़म है, इतों पहले बिन गोरियन जिन्हें कायम करने वाला था, इस तो पहले जो इन्हों की कैबिनेट के 80% जोड़े ने यही ने ज्यूज़ ने, जोड़े फितना बर्दाश्त ज्यूज़ ने, अशकनाजी ज्यूज़ भी कहलाते हैं, खजरियन ज्यूज़ भी कहलाते हैं, ये सारे इन इलाके तो गए हैं। और इन्हों के बारे में हदीस हैगी कि इनका जब दूसरा लश्कर आएगा तो वो कहेगा कि यहाँ तो कोई पानी हुआ करता था, कभी यहाँ पानी हुआ करता था, झील तबिया का पानी पी जाएंगे। लेकिन डॉक्टर शेख इमरान हुसैन ने आखदा वा कि ये जड़े आ ये खजरी ज्यूज़ ने जेडे अज दे यूक्रेन वाले एरिया जेडे हुण भी लड़न डे फितना बर्दाश्त कौम लड़न डे, इतने रूस और आपस में लड़न डे। ते ये लोग असल च यूज मजूज ने, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दे बेटे याफस, ये पता नहीं 4 बेटे थे, 4 दे विचों एक दे बेटे आ यूज और मजूज। 12 बेटे से 12 10 बेटे से 10 दे विचों एक दा नाम याजूज और एक दा माजूज है, उन्हां दी औलादां वा। इंसान ही हैगे आ, कोई अजीबो गरीब मखलूक नहीं है, लेकिन इन्हां दे अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल होया कुरान दे विच कि आसमान से झपटेंगे, हम छोड़ देंगे गुरोह के गुरोह। बेसिकली वो आसमान तो मुराद के शायद उलमा दे नज़दीक एयर फोर्सिस ने जेडे जंगी जहाज़ इस्तेमाल करदियां वा, इन्हां दे कोल हैगियां वा, या बहरहाल ये बेहतर अल्लाह जानदा ते अल्लाह दे रसूल जानदा। लेकिन अल्फाज से लगता इस वजह से कई लोग बचपन तो असीं भी कन्फ्यूज कि साडे उलमा ने जेडे सरसरी उलमा जिन्हां ने दीन नूं खराब कीता, उन्हां दे हिसाब नाल सीगा। लेकिन तफसील दे विच देखिया जाए ये उलमा प्रूफ करते हैं, देखो उत्थों आए हैं। और जो दूसरा इन्होंने लश्कर आया 1945 से पहले इन्होंने लश्कर आए आबाद किया गया इन्होंने इसराइल च, उन्होंने इर्द गिर्द आबाद किया, तिबरिया झील दिख के इर्द गिर्द आबाद किया गया। उत्थों इन्होंने ज़रात वास्ते पानी पींदे गए, लेंदे गए, सारा पानी मुकाता, पीने वास्ते भी इस्तेमाल होया, ज़रात वास्ते भी। झील तिबरिया का नैचुरल पानी जो काफ़ी हद तक डेड लैवल पर ले गए, हुण भी डेड लैवल पर हैगा। तो यो ही दूसरा जो लश्कर आया जो आने वाला वा, शुरू हो गया वा, दूसरी इन्होंने लहर आनी शुरू हो गई है। हुण इन्हां दा पानी मुक्कण वाला हैगा, उन्हां तो मुराद ये हैगे आ। और ये बाद अल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि देख ले उम्मत खुल गए जूज और माजूज के लश्कर तमाम, देख ले उम्मत हरूफ मानी यनसलून, कुरान की आयत जिहड़ी हैगी यनसलून, ओहदा इहदे विच याजूज माजूज जिक्र है। इमरान इकबाल ने अपनी उर्दू शायरी दे विच भी इहदा जिक्र कीता। उन्होंने 100 साल पहले, बल्कि आज तो 120-30 साल पहले 120-30 साल पहले ये गल कर दी सी, यानी उस वक्त तो याजूज मजूज का जिक्र कर दिता सीगा, या पेशन गोई कर दी। बहरहाल ये कन्फर्म किद्दां होए कि ये छोड़ दिते गए हैं, इहदा क्या हदीस हैगी है कि ये खाना काबा का हज जारी रहेगा, खाना काबा का तवाफ जारी रहेगा, खाना काबा का तवाफ जारी रहूगा हत्ता कि जूज मजूज दे लश्कर छोड़ दिते जाएंगे, उसके बाद भी जारी रहेगा, फिर क़यामत कायम होएगी। यानी कि ये जारी छोड़ दिते जाएंगे, उसके बाद भी तवाफ जारी रहेगा, उसके बाद एकदम क़यामत कायम होगी। यानी हुण ये छोड़ दिते गए, उन्होंने सबूत हैगा दौरे फितन दे विच जिहड़ा 3 दिन वास्ते खाना काबा बंद कर दिता गया कोरोना की वजह तो 2018 दे विच कि 19 दे विच। इस तो प्रूफ हो गया दौरे फितन दे विच खाना काबा का तवाफ बंद होना इस चीज़ की गारंटी है कि जूज मजूज लश्कर छोड़ दिते गए हैं। ये अगर मखलूक है तां भी छोड़ दिते गए, ये अगर इंसान हैगे जिहड़े इसराइल दे जूज हैगे फिर भी छोड़ दिते गए। ये तो यह प्रूफ होंदा वा। ये गल कीती है अपना प्रूफ हो गया शेख इमरान अज़हर हुसैन की यह गल कि 10 कबीरा निशानी तो यह पूरी हो गई है। सूरज के मगरब से निकलना जिहड़ा वा, अगर इमरान अज़हर हुसैन की गल कर दी जाए तो वैसटर्न जिहड़ी वो मामलात हैगे वो भी उन्होंने कोल हो चुकिया वा। मेरे हिसाब नाल दुखान जिहड़ा है हो चुकिया वा, मेरे हिसाब नाल अंदाज़ा वा कि दुखान यही है जिहड़ी करोना धुएं वर्गी आई तो तबाही मचा के चली गई, सारी दुनिया च होगी चुटकी बाती। और मोनसरात पता नहीं कैसे कैसे छोटे छोटे, मैं लिस्ट हले भी ऑनलाइन इन्हों का लिस्ट आई वर्ल्डोमीटर के उत्ते, दुनिया का कोई इलाका नहीं, कोई जजीरा नहीं, 100 बंदा 200 बंदा हैगा, कोई बंदा ही नहीं जाता जिथे सिर्फ कश्तियाँ जाती है, जहाज़ जाते हैं। कोई छोटे छोटे पिंड वर्गे हैगे साढ़े पंजाब से, जिथे बड़े बड़े उस तो बड़े 30-40 हज़ार के पिंड हैगे आ, लख के भी पिंड हैगे आ। उत्थे कोई 100-200 पिंड दे जजीरे जिथे उत्थे करोना आ गया तो लोग मरे है।
तो ये कोरोना या तो खुद एक अजाब इलाही सी, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਲੱਗਾ ਵਬਾ ਦੀ ਹਦੀਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਕਿ 2/3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੁਖਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ सूरज का मगरब से निकलना, एक तो उन्हें कर देती है, एक है कि जेडे अर्थ का कोर पिछले 1 महीने पहले 1.5 महीने पहले जेडे अपोजिट चलना रुक के अपोजिट चलना शुरू हो गया, हो सकता है सिंबॉलिक इस्तारन पूरा हो गया है, लेकिन डायरेक्ट फिजिकली नहीं हुआ इस्तारन। बहुत सी चीज़ें दसियाँ गई इनडायरेक्टली पूरा हो गया, हो सकता डायरेक्टली होना हो सकता है यही हो चुका है। बाकी अल्लाह जाने जूझ मौजूदा लश्कर का तो कन्फर्म हो गया, यानी कि असी उस मुकाम पर पहुँच गए जिथे तौबा का दरवाज़ा बंद होने वाला, बहुत तेज़ी निशानियाँ आने वाली या बंद हो चुका वा। 30-40% चांस, अल्लाह करे मैं गलत होवां, इमरान शेख इमरान अजहर हुसैन गलत होए, अंदाजे साढ़े गलत हों, उन भी कुछ उलमा कह रहे वो भी गलत हों, और हले तौबा दरवाज़ा खुला है तो वीडियो करने का फायदा है, तो शायद लोग डर जान और एक जन्नत की लालच चों ते दोज़ख के खौफ तो आने वाले अजाब के खौफ तो असी तौबा कर लईए। तो अल्लाह ताला कुरान च लिखदा वा, तुम तौबा कर रहे हो और तुम डर रहे हो और तुम मुझसे बख्शिश मांग रहे हो, तो मैं क्यों तुम पे अजाब भेजूंगा। तो ये भी अल्लाह ताला की शर्त है, जी कोरोना आके चला गया सी, लोग डर गए सी, ये भी एक वजह से हज़ूर पसंद की मुदाखलत भी सी, साड़ी तौबा दे भी सी, तो यह भी हो सकता वा, दोबारा भी हो सकता वा, लेकिन हुण निशान लगने की लागे असी बड़ी निशानियां दे पहुँच चुके हैं। यही मकसद सी ग्रुप बनाने का, ये दसन का और सारे उलमा का इकट्ठा पॉइंट दसन का कि जिन्होंने जो मिस किया वो भी दस दी। हले कई चीज़ें ऐसी हैं जी मैं सोची थी, क्योंकि ज़रूरी करने की कोशिश कर रहा मैं, कोई मिस ना हो जाए, स्किप ना हो जाए, मैं इस वजह तो मजीद इनू तफसील च नहीं जाऊँगा, लेकिन हुण अगले प्रोग्राम च असी जिहड़ा वा एक प्रोग्राम और करांगे, फिर इस सिलसिले को खत्म ही कर देंगे। और असी किसी एक किताब को पढ़ लेंगे, 2 किताबों को पढ़ लेंगे, उन्होंने जनरल हैडिंग अगे इदा कर देंगे, और जिदा और हर हैडिंग दे विच जिहड़ी एक हदीस हैगी आ, हर एक पॉइंट से 3-3 4-4 हदीसां भी हैगियां, क्योंकि एक ही पॉइंट मुख्तलिफ हदीसां कवर किया गया। दजाल दा 400-500 हदीस हैगियां, ईसा अलैहिस्सलाम ते 100-150 हदीस हैगियां, कुरान की 70 आयत हैगियां, उसके अलावा इमाम महदी के उत्ते 1000 तो ज़्यादा सही ज़ईफ हदीस हैगियां वा मिला के, तो 36 नबियां के कॉल हैगे आ, जिहदे विच सिखां दे भी हैगे, हिंदुआं दे भी हैगे आ, पुराने भी हैगे आ, ते पुराने हैगे आ और उपनिषद हैगे आ, और श्लोक हैगे आ बाबा धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे, और उसके अलावा अहले किताब की 114 आयात हैगियां, जी पुरानी किताबों 30 तो ज़्यादा आयात हैगियां, नवीं टेस्टामेंट यानी कि इंजील दे विच जिहड़ी ईसाइयां दी है, तो यहूदियां दी ईसाइयां दी जिहड़ी यहूदियां दी और कदीम मज़ाहिब दी उन्हां दे 114 आयात हैगियां। बंदा और इन्हां दे यज़दान शनास दे नां तो की नाम हैगा वा, अपने जिहड़े पारसी जिहड़े कहलांदे आ, ज़ोरोस्ट्रियन जिहड़े हैगे आ, ज़रतश्त मज़हब वाले जिहड़े अग्ग नूं पूजन वाले सीगे, मजूसी अरबी च जिन्हां नूं कहंदे, वो भी उन्हां दे भी हैगे। तो उन्होंने हवाले तो एक बंदे दे अज के जमाने के बारे में भी जिक्र है, अज के जमाने की शख्सियत के बारे में भी जिक्र है, अज के हालात वाक़िया के बारे में भी जिक्र है, और यह ओरिएंटेशन सानू देगा अगे असी कित्थे पहुँच गए, अगे की होना वा, अगे की हो रहा वा, सानू इहदे वास्ते की करना वा। तौबा दरवाज़ा साढ़ा शॉर्टकट इन शॉर्ट इहदा मकसद यही है कि पता लग जाए सारी ओरिएंटेशन, असी है कित्थे, असी कौन, असी कित्थे जाना वा, साढ़े को कितना टाइम रह गया, कितना पूरा हो गया। 95% टोटल दी पूरी हो गई हैं। अगर तौबा दरवाज़ा बंद करना चले जाइए, दजाल दे खुरूज, इमाम महदी दे ज़हूर, ईसा अलैहिस्सलाम दे नज़ूल, वड्डी निशानियां दे कोल, तो फिर असी साढ़े कोल 2-3% रह गए। और जिहड़े अदवार च किया जाए हज़ूर असलम दे जिहड़ी हदीस सीगी 5 अदवार दे विच, असी 4.5 ते लगे पहुँच गए, बाद एक अच्छा दौर आने वाला, लेकिन उस अच्छे दौर तो पहले 2/3 दुनिया मरनी है। लेकिन वो भी मैं दसिया कि अल्लाह ताला नूं इख्तियार है कि तब्दील कर देवे, या हज़ूर असलम ने बहुत कुछ किया वा, मैं उहदे बारे गारंटी नहीं, लिखिया इदां हैगा, लिखने के हिसाब नाल 4-5 अरब बंदे मरने ही मरने हैं, 5 अरब, लेकिन लिखे नूं तब्दील करने वाले मैं ही लिखा, मैं ही टाला, मैं आप कलम से आहीदा, मैं मालिक कलम से आहीदा। ये सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ने लोकल पंजाबी च शेर लिखा, मैं आप ही लिखे आप ही टाला, मैं मालिक कलम से आहीदा। जिहड़े लिखण वाले वो तो अपने ही टाल देन, असीं नहीं कह सकते जिहड़ा लिखिया सी, जिहड़ा पहिया लिखिया होया सी वो दस रहे, जिहड़ा कुछ लिखिया होया जिथे एक नहीं कोई 20 किताबां दे विच और लिखिया है, असी उही दसना वा, उहदे विच तब्दीली वो कर देने अलग मामला, लेकिन सानू तैयारी लिखे के हिसाब नाल करनी है। चलो अल्लाह ताला खुश रखे, तुहानू सलामत रखे, और अगले प्रोग्राम च असी सगीरा, मुतवसित और कबीरा हैडिंग वाइज असी जल्दी शार्ट करके एक दफ़ा करांगे। किन्नी पूरियां हो गई, क्यों मैं कहना कि 95% पूरी हो गई, मैं साबित करांगा जल्दी दे विच सबूत दे नाल कि किहड़े कित्थे वाक़ियात किद्दां होए। उहदे वास्ते इंटरनेशनल रिलेशन, इलाकाई हालात व हाजरा और जियोग्राफिया और तारीख और सियासियात का इलम होना ज़रूरी है, पोलिटिकल साइंस का, इंटरनेशनल रिलेशन का और जियोग्राफी नक्शियां का और जनरल नॉलेज का होना ज़रूरी है। उन हदीसां नूं समझण वास्ते, ते थोड़ा बहुत साइंस का भी, थोड़ा बहुत फलकियात का भी, एस्ट्रोलॉजी का
उस हिसाब नाल असीं जल्दी जल्दी शॉर्टकट करांगे। है तो बहुत लंबा, इन्ना छोटा नहीं हैगा। हज़ूर असलम ने सुबह फजर तो लेक्चर शुरू किया सी, ज़ोहर तो शुरू किया सी, असर तो मगरिब तो इशा, यानी सुबह तो लेकर इशा तक नमाज के गैप के दौरान मस्जिद नबी च इल्म आखिर ज़मान के बारे में समझाया सी। यही पूरा लेक्चर नहीं सी, अलावा मुख्तलिफ मकामात अलग अलग गल्लां कीतियां जिहड़ी उहदे अलावा कीतियां सी, जिहड़ा शामिल नहीं हैगियां, कुछ शामिल हैगियां कुछ नहीं हैगियां, ते बहुत वसी इल्म हैगा। ते उलमा ने जिहड़ा इहनूं ते गल नहीं कीती, क्योंकि जिन्ने सुन्नियां दे उलमा आलिम बनदे ओह किताब बन के बनदे सही बुखारी। सही बुखारी दे विच किन्ने हैगे 40 50 60 सफ़े, ते उन्हां दे उस्ताद दी एक किताब आ हैगी आ, ते एक किताब तुहानूं पहले भी दिखा चुका उन्हां दे उस्तादां ने किन्नी वड्डी वड्डी किताबां लिखियां वा। ते ओह ये तुसीं इमाम बुखारी दी 60 70 सफ़े ते ओहदे इमाम बुखारी दे उस्ताद है नुएम बिन हमाद किताबुल फितन, इहदे विच 1200-1300 सफ़े हैगे, 1200-1300 सफ़े उस्ताद ने लिखे ते शागिर्द ने 60-70 लिखे, ते 60-70 कोर्स का हिस्सा वा। ते 60-70 कोर्स वाले हिस्से के नज़रिए असीं किदां मुकम्मल इल्म ले सकते हैं, इहदा मतलब है नहीं कि यह गलत हैगी। सब तो मुस्तनद इमाम बुखारी है, लेकिन उस्ताद ने जिहड़ी लिखी है उन्हें लिखी सिर्फ आखिरी ज़माने ते साडे वास्ते लिखी है। इहदे अलावा मोहम्मद बिन अब्दुल रसीद बरजंजी दूसरी बड़ी किताब है, और बहुत सी किताबां इमाम बुखारी समेत। तो फिर जाके उन्होंने कई सालों की मेहनत तो बाद मैं निचोड़ दसांगा, और दस चुकिया वा जी कम दी चीज़ां सीगियां सानूं, जिहड़े मुख्तलिफ उलमा ने जिस तरह बयान दिते उन्होंने इंपोर्टेंट चीज़ां मैं इकट्ठी करके तुहानूं दसियां वा, ज़रूरी चीज़ां। उम्मीद तुहानूं इहदा फ़ायदा होएगा और तुसीं अगे भी दसोगे, और बाकी जिहड़ा इहदे तफसीलात असीं अगले प्रोग्राम 'च दसांगे। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।